तो पहला लॉ देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मैटर इज neither created nor destroyed in a chemical reaction. Matter is neither created, matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. Matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. अब देखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट the law of conservation, the law of conservation of mass means that the law of conservation of mass means that in a chemical reaction, the total mass of products means that in a chemical reaction, the law of conservation of mass means that in a chemical reaction, the total mass of products is equal to the total mass of products is equal to is equal to the total mass of reactants. The total mass of products is equal to the total mass of reactants. मैं इधर लिख रहा हूँ total mass of reactants. Total mass of reactants. Full stop. There is no change in mass during a chemical reaction. There is no change in mass during a chemical reaction. There is no change in mass during a chemical reaction. इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कभी भी हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है और हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से वाटर बनता है। ठीक है। तो जब भी हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उनके कॉम्बिनेशन से वाटर बन रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला H2 प्लस O2 गिव्स H2, अब ये रिएक्शन किस तरीके से होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है कि आप उसको अभी करें, वो 10th क्लास में आप करेंगे, अलग ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो वो अभी करने की उसको जरूरत नहीं है क्या? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और इसके मिलने से H2O बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो मेंशन कर रखा है ना इतना, इनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। ये होते हैं रिएक्टेंट्स। और ये जो राइट हैंड साइड पर है ये, इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट।
ठीक है। तो जो भी रिएक्ट होता है, जो आपस में रिएक्शन होता है जिन दो चीजों का, उनको तो हम बोल देते हैं रिएक्टेंट्स, और इस तरफ जो है उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि during a chemical reaction, the law of conservation of mass states that the total mass of reactants is always equal to the total mass of products. Reactants का mass और products का mass हमेशा equal होगा। ये चीज बोलता है क्या, law of conservation of mass. According to this, total mass of reactants total mass of products के equal होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके और चीज क्लियर होगी। क्वेश्चन नोट करिएगा, सोडियम कार्बोनेट, मैं इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1। sodium carbonate reacts with ethanoic acid. Sodium carbonate reacts with ethanoic acid. Sodium carbonate reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate. To form sodium ethanoate, comma, carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Sodium ethanoate, carbon dioxide and water. Full stop. In an experiment, in an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate, 5.3 gram of sodium carbonate. In an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. Reacted with 6 gram of ethanoic acid. Reacted with 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate. To form 8.2 gram of sodium ethanoate. 8.2 gram of sodium ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide, 2.2 gram of carbon dioxide, and 0.9 gram of water. And 0.9 gram of water. Full stop. Show that this data verifies the law of conservation of mass. Show that this data verifies the law of conservation. Verifies the law of conservation of mass. इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। मुझे ये बताना है, इन्होंने बोला है कि सोडियम कार्बोनेट, कोई एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ में, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या बन रहा है,
सोडियम इथेनोएट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। रिएक्ट कौन कौन कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड। तो ये दो सब्सटेंसेस हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। और बन क्या रहा है? सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये हो गए हमारे पास प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो सबका मास दे रखा है। अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाता है तो मैं कहूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो गया। नहीं आता है तो कहूंगा नहीं हुआ। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। तो आप देखिएगा मैं इस तरफ ये लेफ्ट साइड वाला मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मुझे? सोडियम इथेनोइड, सोडियम इथेनोइड प्लस दूसरा क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? वाटर। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या हो गए? सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, ये तो रिएक्टेंट्स हो गए। प्रोडक्ट सोडियम इथेनोइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स पहले इधर निकालेंगे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मास कितना? 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3। दूसरा रिएक्टेंट क्या? इथेनोइक एसिड, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ये हो गया 6। तो 11.3 ग्राम, ये हो गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फिर बात करेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? 5.3 ग्राम of sodium carbonate reacted with 6 ग्राम of ethanoic acid to form 8.2 ग्राम of sodium ethanoate। तो सोडियम इथेनोएट कितना? 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 0.9 ग्राम of वाटर। तो 2 + 2 4, 4 + 9 13, 1 आ गया कैरी, 1 + 8 9, 9 + 2 11, तो 11.3 ग्राम। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये लॉ वेरीफाई हो गया। सिंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, hence hence law of conservation, law of conservation of mass is verified। सामने आ गया सभी को? ठीक है ना, सिंपल था। बताइए आदित्य, दिव्यांशी, गरिमा, इंदर, क्लियर है? यस सर। यस सर। प्राजक्ता बताइए, क्लियर है? यस सर।
ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर ही लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, calcium carbonate decomposes on heating. Calcium carbonate decomposes on heating. Calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. 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 Full stop. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, when 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, comma, then 5.6 gram of calcium oxide, then 5.6 gram of calcium oxide, 5.6 gram of calcium oxide is formed. Is formed. Full stop. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Calculate the mass of carbon dioxide. Calculate the mass of carbon dioxide formed. Full stop. Which law of chemical combination will you use in solving this problem? बेटा दिखाई दे रहा है सबको नीचे तक? सभी को दिखाई दे रहा है? नहीं? अरे सबको दिखाई दे रहा है इधर? सुनाई भी नहीं देना बंद हो गया क्या? सर दिख रहा है। ये बस एक बच्चे को सुनाई दे रहा है। आदित्य, गरिमा, इंदर, न्यासा, प्राजक्ता, यहाँ तक दिखाई दे रहा है या थोड़ा ऊपर करूँ इसको? सर सही है। मेरी आवाज कम जा रही है। सर सही है ऐसी। ओके ओके ओके। Which law of chemical combination will you use? Which law of chemical combination which law of chemical combination will you use in solving this problem? Will you use in solving this problem? Calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. तो decomposition का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ठीक है?
तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो गया, उसको गर्म करा गया तो वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया, टूट कर क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें बन गई। तो रिएक्शन लिखिए पहले तो। रिएक्शन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कोई और रिएक्टेंट इसमें ऐड नहीं कराया, कैल्शियम कार्बोनेट को सिर्फ हमने गर्म करा। तो यहाँ पर एरो लगाकर इसके ऊपर ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल का मतलब होता है हीटिंग, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट करा तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया। उसके बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इन्होंने बोला when 10 ग्राम of calcium carbonate is decomposed completely then 5.6 ग्राम of calcium oxide is formed, calculate the mass of carbon dioxide formed। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि total mass of reactant, रिएक्टेंट के नाम पर तो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो इसका मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 10 ग्राम, ठीक। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स जो है वो देखिए दो हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass of reactants is equal to total mass of products। रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल हो जाएगा। प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या है 10 ग्राम है सिर्फ केवल कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 10 इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना 5.6 ग्राम प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, 5.6 को इधर ले जाओ, mass of CO2 is equal to 10 minus 5.6, कितना हो गया 4.4 ग्राम। तो लास्ट में इन्होंने पूछा which law of chemical combination will you use in solving this problem, तो law of conservation of mass, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।
देखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि जब कहीं प्रोपोर्शन फिक्स होता है तो उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी चीज को अगर हम बना रहे हैं और बनाने में अगर उसका प्रोपोर्शन फिक्स है, प्रोपोर्शन फिक्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मान लो हमको चाय बनानी है, तो चाय बनाते टाइम हम किस चीज का ध्यान रखेंगे? हम ये देखेंगे एक तो हमारे पास पानी हो, चाय की पत्ती हो, चीनी हो और दूध हो, तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने एक ना एक खुद से बना बनाकर प्रैक्टिस हमको हो गई, तो हमने फिर एक ना रूल बना लिया। हमने ये रूल बनाया कि अगर 1 कप चाय बननी है तो उसमें आधा कप पानी होगा, आधा कप दूध होगा, और उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे और 1 चम्मच चीनी डालेंगे। तो ये प्रोपोर्शन फिक्स हो गया। अगर मान लीजिए हमने गलती से उसमें चाय की पत्ती थोड़ा ज्यादा डाल दी, तो क्या होगा? वो थोड़ी डार्क कलर की चाय बन जाएगी, ठीक, उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर मान लीजिए हमने 1 चम्मच चीनी की बजाय 1 चम्मच चीनी की बजाय हमने उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी डाल दी, तो वो बहुत ज्यादा मीठी हो जाएगी। सोचिए कि हमने उसमें दूध से ज्यादा पानी डाल दिया, तो फिर वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पतली चाय बनेगी। तो ये जो चीजें हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमको एक परफेक्ट चाय बनानी है, तो परफेक्ट चाय बनाने के लिए हमारा प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में ये पहले से ही स्पेसिफाइड होता है कि भाई आप अगर कोई वॉल बनाना चाहते हैं, कोई दीवार बनाना चाहते हैं, अगर आपको कोई घर बनाना है या कोई ऑफिस बनाना है, तो अगर आप वॉल बनाएंगे, तो वॉल बनाते टाइम आपको अगर 5 ग्राम सीमेंट रखना है, तो उसमें 1 ग्राम या 2 ग्राम आप सैंड डालेंगे। सैंड को मिक्स करने से सीमेंट की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उसको फैलाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो जो सीमेंट होता है, सीमेंट में सैंड मिक्स करा जाता है ताकि वो आराम से उसको फैलाकर और उसके ऊपर ईंट पर ईंट सब जोड़कर और घर की दीवार बना दी जाए। तो अब अगर उसमें आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपने प्रोपोर्शन बिगाड़ दिया, आपने 5 ग्राम सीमेंट में पता चला आपने 5 ग्राम ही सैंड मिला दिया, तो वो जो सीमेंट है वो इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा, फिर उसमें पानी मिक्स करते हैं, वो इतना पतला हो जाएगा कि वो दीवार को उतना स्ट्रांगली होल्ड ही नहीं कर पाएगा। पता चला कि जरा सी तेज आंधी आई, जरा सी तेज हवा आई और आपके घर की दीवार ही गिर गई, ठीक है? तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में किसी भी चीज को मिक्स करा जाए तो वो अच्छा हमको एक रिजल्ट दे, एक प्रॉपर प्रोडक्ट बने। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं तो वाटर बन जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक हाथ में हाइड्रोजन का सिलेंडर ले लूं और एक हाथ में मैं ले लूं ऑक्सीजन का सिलेंडर, और दोनों सिलेंडर से 2 पाइप निकालूं और एक कंटेनर के अंदर दोनों पाइप्स को डाल दूं, तो पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है कि इनका भी प्रोपोर्शन फिक्स होता है। हाइड्रोजन और वाटर को बनाने का जो प्रोपोर्शन फिक्स होता है उसको बोलते हैं 1:8 बाई मास। 1:8 बाई मास का मतलब क्या है कि अगर 1 ग्राम मुझे हाइड्रोजन लेना है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आप इस रेशो को बिगाड़ देंगे तो पानी नहीं बनेगा, दोनों गैसेस मिक्स भी नहीं हो पाएंगी, अलग अलग इवेपोरेट हो जाएंगी दोनों गैसेस। हाँ, आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस डाली किसी कंटेनर में और 8 ग्राम आपने ऑक्सीजन गैस डाली, तो पानी की 1 या 2 बूंद बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स करा जाता है। अगर प्रोपोर्शन बिगड़ा तो समझ लीजिए कि जो आप कंपाउंड बनाना चाहते हैं वो कंपाउंड बन नहीं पाएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लिखिएगा, आप नोट करें। According to this law, according to this law, a chemical compound always consists of, according to this law, a chemical compound always, chemical compound always consists of the same elements combined together
consists of the same elements combined together in the same proportion. Combined together in the same proportion by mass. The same proportion by mass. For example, in water, the proportion of hydrogen and oxygen is fixed. That is 1:8 by mass. मतलब अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और ये 1:8 प्रोपोर्शन जो है ये फिक्स होता है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आगे क्वेश्चंस इस पर करेंगे, कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।